The Adventures of Robinson Crusoe. My next work was to explore the country and look for a suitable place in which to live. I also needed somewhere to store all the things I had brought from the ship. I did not yet know where I was, whether on a continent or on an island, whether it was inhabited or uninhabited, whether I was in danger from wild animals or not. I looked around. I could see that I was on an island completely surrounded by the sea. There was no land to be seen, except some rocks and 2 islands smaller than this. About 9 miles away to the west, there was no sign of human life, or farms or plantations. There were just trees, plants, and wild animals. I came back to my raft and set to work bringing my cargo on shore. This took me the rest of the day. I did not know what to do with myself at night. I was afraid to lie down on the ground in case wild beasts might eat me, though there was really no need for me to have been frightened. I still did not know how I was going to supply myself with food. The only animals I had seen were like large rabbits. Looking out to sea again, I began to think I might still get a great many things out of the ship which would be useful to me, particularly some of the ropes and sails. So I decided to go back again if possible. I knew that the storm would break her up, so I left everything and made my way to the ship. I got on board the ship. In the carpenter's stores, I found 2 or 3 bags of nails, a dozen axes, and a grindstone, which was a most useful find. Besides all these things, I took all the men's clothing that I could find, some sails, a hammock, and some bedding. With all these, I loaded my second raft and brought them all to shore. Having got my second cargo on shore, I set to work to make a little tent with the sails and some poles. Into this tent, I brought everything that could be spoiled by the rain or the sun. When I had done this, I blocked the door of the tent with some boards on the inside and with an empty chest on the outside. Then, after spreading one of the beds on the ground, I went to bed for the first time. I slept very well all night. I now had many stores, but I was still not satisfied. For while the ship was out there on the sandbank, I thought I ought to get everything out of her that I could. So every day at low tide, I went on board and brought away something. On my third visit, I brought away rope and some pieces of canvas. I also brought another barrel of wet gunpowder. I had now been on the shore for 13 days and had been 11 times to the ship. ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं होगा, सभी को पसंद है। आज उसी के बारे में, जो कंट्री के बारे में पता करता है, वो रॉबिन्सन क्रूसो जो है, उसकी स्टोरी द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो जो डैनियल डेफो ने लिखा है, आज हम उसका हिंदी मैं बताने वाली हूँ। हिंदी स्टोरी, एक छोटा सा पैसेज, एक छोटी सी स्टोरी इसकी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट वर्क था, क्या था, एक नई कंट्री के बारे में तलाश करना, और उस कंट्री जिसके ऊपर मैं तलाश करूँगा वहाँ पे रहने के लायक प्लेस है क्या नहीं, लोग रहते हैं क्या नहीं, ऐसे देखना। मैं ऐसी जगह पे मैं मेरी शिप लेके आ चुका था, उसमें से थोड़ा सा सामान मैंने बाहर लेके जो शोर है, मतलब किनारा है, वहाँ पे रख दिया था। मैं सराउंडिंग में, आजू बाजू में सभी जगह पे देख रहा था, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये कॉन्टिनेंट है कि आइलैंड है। मैं और जिस किनारे पे मैं खड़ा हूँ वो रहने के लायक है भी क्या नहीं है, यहाँ पे लोग रहते हैं क्या नहीं रहते हैं, यहाँ पे वाइल्ड जो एनिमल्स है वो है क्या नहीं है, यहाँ पे रहना मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, कि डेंजर है, ये सब कुछ मैं देख रहा था। और मुझे इतना तो पता चल चुका था कि मेरे आजू बाजू में, मतलब मैं आइलैंड के ऊपर हूँ, मेरे पूरा चारों ओर पानी ही पानी, मतलब समंदर है, और मेरे सामने जब मैं वेस्ट दिशा की ओर देखता हूँ, यहाँ से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे साधारण से मुझे 2
स्मॉल छोटे छोटे आइलैंड के जैसे दिख रहे हैं, पर ये इससे छोटे हैं। और वहाँ पे मुझे वाइल्ड लाइफ, प्लांटेशन, कोई भी ह्यूमन लाइफ वहाँ पे नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि वहाँ पे जंगल है और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो सकती है, वाइल्ड एनिमल्स हो सकते हैं। पर मैं अब यहाँ पे हूँ तो मैं यही का सब देखूँगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आ चुका हूँ। तो ये वाला प्लेस, यहाँ पे रहना और यहाँ पे जो मैं मेरी जो चीज़ें शिप में बाकी थी वो भी लाना ज़रूरी था। मैं अब ज़्यादा टाइम गंवाना नहीं चाहता था। मैंने दिन भर जितना कुछ काम था वो सब करके मैं सोच रहा था कि अब रात को मैं क्या करूँगा। मुझे यहाँ पे ऐसे अकेले बेचैन से तो नींद नहीं आने वाली थी। मैं वहाँ पे ज़मीन पे पैर रखने के लिए भी बहुत सोचता था। तो रात कैसे बिताऊंगा, सोऊंगा कैसे, मैं सोऊंगा और जंगल का कोई भी जंगली जानवर आके मुझे खाना बना लेगा। तो मैं इसीलिए डर रहा था। एक्चुअली मुझे पता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है और मेरे लिए फूड भी तो नहीं था। अब मैं क्या करूं, ऐसे सोचते यहाँ पे फूड मतलब जो बड़े बड़े रैबिट्स दिख रहे थे वही शायद मेरे लिए खाना बनने वाले थे। बस अब मैं और सोच सोच के देख देख के परेशान हो चुका था। मेरे लिए अब और कौन सी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें थी कि जो शिप में है और मेरे काम में आने वाली है। मैं अब टाइम गंवाना नहीं चाहता था और वेट भी नहीं करना चाहता था। शिप के अंदर बहुत सारे रोप्स है जो मेरे लिए काम में आने वाले थे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे पानी के बीच में मैंने जो मेरी शिप रखी थी वहाँ पे जाके मुझे अब मेरा सामान थोड़ा थोड़ा करके लेके आना है। मैंने थोड़े बाम्बू इकट्ठा किए और मैंने छोटा सा एक मेरा शिप बना लिया और मेरी शिप की दिशा की ओर मैं निकल पड़ा। मैं जैसे ही मेरी शिप के अंदर गया तो मैंने देखना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया और मुझे 2-3 बैग्स जो नेल्स के हैं, मतलब जिसको हम खिला बोलते हैं, उसके मैंने ले लिए थे। उसके बाद में मैंने मेरी कुल्हाड़ियाँ, कुछ कटर्स जो थे वो कटर्स भी ले लिए थे, ग्राइंड स्टोन जो बोलते हैं वो भी ले लिए थे, कुछ मैंने कपड़े भी ले लिए थे। ऐसे मैंने जितना सामान उस टाइम पे मुझे पॉसिबल था लाने के लिए, जहाँ से मैं ट्रैवलिंग कर रहा था वो तो एक ही जो है उसके मतलब एक ही इसमें राफ्ट में तो नहीं हो सकता था। तो 2 राफ्ट मैंने बना लिए थे और दोनों राफ्ट एक दूसरे को अटैच करके मैं शिप में से जितना सामान ला सकता था मैं ला रहा था। ऐसे 2 बार मैंने आना जाना कर दिया और जितना सामान हो सके उतने कपड़े सामान सब लेके आया था। अब मैंने 2 पोल्स ज़मीन में अच्छे से गाड़ दिए थे और मैं अब टेंट बनाने की कोशिश कर रहा था। पूरा दिन लग गया मुझे टेंट बनाने के लिए और ये टेंट मुझे इसलिए बनाना था कि अगर बारिश आ जाए, कड़ी धूप है, तो ये कड़ी धूप में से बचने के लिए भी मुझे ये बनाना था। उसके बाद में मैंने टेंट का जो दरवाज़ा है वो एक लकड़ी के बड़े से मोटे से जो बोर्ड रहता है उससे मैंने उसको क्लोज़ करने के लिए मैंने टेंट के बीचों बीच वहाँ पे लगा दिया। अच्छे से उसको भी मैंने पैक कर लिया था और ये हो गया मेरा अब रेडी। जो टेंट है वो रेडी हो गया था। उसके बाद में मैंने ग्राउंड के ऊपर मेरा जो बेड है उसको अच्छे से बिछा दिया और फिर मैं सो गया। ये पहली बार था कि इस बार अब मैं सोच सकता हूँ कि हाँ, मैं आज की रात तो नींद अच्छे से आ जाएगी। और जितना सामान मुझे लग रहा था शिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सामान भी मैं सब बाहर यहाँ पे किनारे में लेके आया था। अभी मैं और सोच रहा था कि ऐसे करूँ, शिप को ही लेके आऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे मैं दिन भर सोचता रहता था। और अब ये नई वाली जो प्लेस है ये एडवेंचर मेरे लिए बन चुकी थी। मैं रोज़ मेरे शिप के अंदर जाता था, रोज़ शिप के अंदर जो भी सामान मुझे दिखता था, इम्पोर्टेंट लगता था, ऐसे मैं लेके आता था। मेरी पहली, दूसरी, तीसरी हर विज़िट में कभी मैं जो मोटे मोटे बैरल्स होते हैं, गन पाउडर होती है, बड़े बड़े रोप्स थे मोटे मोटे, वो कभी कभी एक्सेस, ऐसे मैंने नियरली 13 डेज़, मैं 13 डेज़ में वहाँ पे रहा और मैं 11 बार मेरी शिप की ओर गया था। तो आप देख सकते हैं
मेरी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।